Okay, so I hope I'm audible. Uh, right now, I'm using the microphone of my earbuds for the audio purpose. So what I'm trying to do here is that, so from last few days, okay, let me read. From last few minutes, maybe an hour, uh, I try to figure out that what are the things which affect my decision, maybe the thinking of my brain, or maybe the focus. Okay, what are the things which affect me mentally? You know, so here are the few main points I written in the green marker. I know that it's not visible in this video right now because I'm using the like a webcam, not a proper camera to record this video. So the first point, and also I defined those points in with sorry those points using black markers. So the first point is structure of brain. Okay, I defined this particular point structure of brain in two parts. The one thing is that what you got from your generational family. Okay, something which is you got from your ancestors, which is you know in the past in thousand years ago. And the second thing is like the brain structure which is created from your childhood. Okay, we all have the common things. Like there are few things which is common in every human being, and that common thing is something which we got from our from our past generation. The second thing which define the differences between the each individual is what which we got from our birth. Okay, from your family, the way you raise it in your family, in the city, in particular culture, religion, and all that stuff. तो ये तो पहला पॉइंट हो गया. Okay, okay. The main purpose of recording this video is that so that I brainstorm myself behind this point, and I just record the whole thing so that in future, whenever I have to recall things on these points, I just have to watch this video. तो उसके लिए I think मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा because I like mother tongue is always be the most comfortable language for anyone except me. I'm very good at English and I love English. Maybe in soon I will start learning Tamil or Telugu. So the जो पहला पॉइंट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. दूसरा पॉइंट है थॉट्स इन माइंड. Okay, thoughts in mind. Okay, I also gave these points to ChatGPT, and she just redefined whole points in more deeper way. So under structure of brain, she gave that title brain structure and genetics. So the point which comes under the first one is, according to ChatGPT, is natural brain wiring, genetics, hormones, personality tendencies from birth, early childhood development. So something you guys can notice in my voice, there are some fumbles, there's few blockages, you know, uh, and that is something I developed in my childhood. There is some other story I don't want to say in this, but based on those things, I face a little bit problem while speaking, just in vowels or with the sound of vowels. The second point which I mentioned here is the thoughts in mind. Okay.
that thought, I can say the thinking or the overthinking, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ जो थॉट्स होते हैं, जब मैं बोलता हूँ थॉट्स इन माइंड, तो मेरा मेन फोकस ज्यादातर ज्यादा ओवर थिंकिंग पे है, ना कि एक नॉर्मल थिंकिंग पे। तो that can be based on you from past, like something happened in your past and आज भी आप बैठ के उसको ओवर थिंक कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है, और जो लास्ट प्रेजेंटेशन आपने दिया था वो बहुत खराब गया था, आप बहुत तैयारी करके आए थे और बहुत खराब गया था। बच्चे जो आपको सुन रहे थे वो भी आपके हंसे थे। जो फैकल्टी थी आपकी, जो प्रोफेसर था वो भी टोका कि यार क्या कर रहे हो, से क्या रही हो, मतलब दैट स्टफ। इस बार उनको फिर से प्रेजेंटेशन देना है, सेम प्रोफेसर सामने, सेम बच्चों सामने जो तुम्हारे क्लास स्टूडेंट्स हैं। एंड यू नो, सो वो एक निगेटिव जो पास्ट थॉट तुमको ओवरटेक कर रहा है, तुमको फिर से पे बैक एंड पे भेज रहा है। तो दैट इज समथिंग फ्रॉम पास्ट एंड द फ्यूचर में बी लाइक, अगर आपका कोई पेपर है, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका कोई मैच है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, नो, बेस्ड ऑन द पास्ट, कि मेरा तो इसमें खराब हुआ था, मैं फ्यूचर में उसको खराब होने को लेके ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो वो जो थॉट्स होते हैं बहुत बार ये निगेटिव ही होते हैं, तो होते नहीं तो हम उनसे बात ही कभी नहीं करते। पॉजिटिव, मैंने उन थॉट्स को जो पास्ट और फ्यूचर, ज्यादातर लाइक 98% वो पास्ट और फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट के थॉट्स को मैं थॉट्स नहीं मानता, बिकॉज आप प्रेजेंट में रहते हो। अगर आप प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट की थॉट्स कर रहे हो, तो वो आप प्रेजेंट में नहीं हो, फिर वो जो थॉट्स हैं वो भी प्रेजेंट में के नहीं है। तो शायद जस्ट जो 10 मिनट बाद आने वाला फ्यूचर है वो हो सकता है, और फिर जो 10 मिनट पीछे गया हुआ पास्ट है वो हो सकता है। वो प्रेजेंट तो नहीं रहा, इतना तो मैं जानता हूँ। तो वो थॉट्स निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बहुत बार नॉन डिफाइंड होते हैं, कि मतलब आप उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये थॉट्स बहुत गंदे होते हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो इसको चैट जीपीटी ने और अच्छे से डिफाइन किया है। तो पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज करके, इसमें ट्रॉमा हो गया, सक्सेस एंड फेलियर हो गया, चाइल्डहुड इन्वायरमेंट हो गया, इमोशनल मेमोरीज हो गया, फियर, सेम, कॉन्फिडेंस, हैबिट फ्रॉम द पास्ट एंड ऑल दैट स्टफ। द थर्ड पॉइंट, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है, मैं इस पे बहुत टाइम दूंगा क्योंकि इसको मैंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। सो what you are seeing slash watching and feeling, like the physical feel, ओके, कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग बेस्ड होगी कि आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप मतलब फोन में क्या देख रहे हो, अपने टीवी पे क्या देख रहे हो, आप बाहर दुनिया में क्या देख रहे हो, आप फिजिकली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, मैंने आपको पहले बोल दिया, वो वॉचिंग में ही आ जाएगा, क्योंकि वॉचिंग को क्या, सीइंग का मतलब इतना होता है नहीं कि आप को सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप मैं ऑडिबल हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पॉजिटिव साइड में जाऊं, तो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें भी आप फिजिकल एक एक्टिविटी कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप इन्वायरमेंट को देख रहे हो, बेस्ड ऑन दैट आप फिजिकली कुछ डिसीजंस डिसीजंस ले रहे हो। सो वो स्पोर्ट्स में आ गया। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, आप कोई अच्छी बुक रीड कर रहे हो, तो ये आपको रीडिंग थिंक, ये जो जो चीजें आप कंज्यूम करते हो, देख के, सुन के, पढ़ के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन निगेटिव, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट आप सिगरेट पी रहे हो, इंस्टेड ऑफ वॉच डॉक्यूमेंट्रीज आप पॉर्न देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, ओके, बुक्स which can really helps you to grow or to learn new things। बायस न्यूज पढ़ रहे हो बैठ के, ये सब कोई सेंस नहीं है, ये सब कोई मतलब है, इसमें कोई इम्पैक्ट आपको होगा ही नहीं इन रियल लाइफ। तो ये चीजें इस पॉइंट्स में आएगा। अब इसने क्या बताया है कि इनपुट फ्रॉम
environment, what you consume, like the videos, the movies, and the porn, the news, social media. आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो? ठीक है, डूम स्क्रॉलिंग टर्म आजकल बहुत फेमस हो रहा है। या लगातार बस स्क्रॉल किए जा रहे हो, और आफ्टर 30 to 40 मिनट तक लाइक फील होता है कि यार आधा घंटा बीत गया, एंड आपने कंज्यूम क्या किया? कुछ नहीं। आपको बस 100 डोपामिन के कुछ डोज मिलते हो, इससे तो कुछ हुआ नहीं। मैं भी करता हूँ, अगर मेरे पास कोई काम नहीं था तो, इसलिए मैं फालतू का काम करता था, जैसे ये वीडियो बनाना, कोई सेंस नहीं, पर मैं बना रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रोलिंग मैं ये कर रहा हूँ। शायद कभी रास्ते में जाते हुए तो देख लूंगा, इस वीडियो देखते तो कोई थॉट्स आ जाए जो शायद मेरे को बहुत हेल्पफुल रहे आगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो में बहुत तेज बोल जाता हूँ, ताकि मेरे वर्ड्स क्लियर निकलते ही नहीं है, और बोलते वक्त मुझे महसूस होता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। जब मैं वीडियो देखता हूँ तब मैं करता हूँ रियलाइज, अरे यार मैं बहुत फास्ट यहाँ बोल गया, या फिर मैंने वर्ड्स प्रॉपरली बोले ही क्यों नहीं, वो मैं अपने मुंह में क्यों नहीं, अपने मुंह में क्यों खा गया उस वर्ड को। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप गाना कौन सुन रहे हो, आप कन्वर्सेशन किस टॉपिक पे करते हो, आप डेली क्या देख रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कंटेंट, ये इसमें पॉइंट्स दिए। देन व्हाट यू आर ईटिंग। तो मैं मानता हूँ कि और चीज मैंने महसूस किया कि आप कैसा पानी पी रहे हो, आप क्या खा रहे हो, लाइक आपके बॉडी में क्या लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, क्या सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। बॉडी के लिए तो मैटर करता ही करता है, बट थिंकिंग प्रोसेस में भी बहुत मैटर करता है। ये मेंटली एक कोई लाइक ऐसा, लाइक ऑन द मोमेंट आप कोई इम्पैक्ट फील नहीं करोगे, बट विद टाइम आपको इम्पैक्ट, आई थिंक बहुत कम लोगों को ये होता है रियलाइज, बट इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड नोटिसबल होता है। अब पॉजिटिव निगेटिव तो आप जो खा रहे हो उस पर बेस्ड होगा। तो या लाइक जंक फूड स्लैश हेल्दी फूड। देन द नेक्स्ट पॉइंट, ओके लेट मी रीड व्हाट सी गे। फिजिकल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, फूड स्लैश न्यूट्रिशन, स्लीप, या स्लीप भी आएगा इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक नींद। मैं आई थिंक 1 या 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 48 आवर्स बिना सोए जागा रहूं, और मैं हर दिन फेल होता हूँ, हर बार मैं फेल हुआ हूँ। मैं आज तक सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हूँ, और मैं जागा हूँ, बट मैक्स टू मैक्स आपका ये 30 मिनट्स हो गया, यू नो, 30 आवर्स हो गया। उसके बाद फिर मैं 12 12 15 15 घंटे तक सोता था, उसको कोई सेंस बनता नहीं फिर। तो फूड एंड न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज, सनलाइट। अब समर में तो मैं नहीं बोलूंगा सनलाइट लो, नहीं तो आपको क्या होगा पता ही है आपको। टीचर्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, पीयर प्रेशर। ओके सॉरी, मैं नेक्स्ट पॉइंट चला गया। ओके, सनलाइट, वाटर इनटेक, वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। बहुत से लोग जानते हैं क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और वो नहीं ठीक कर पाते, उनकी जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि हम ये जानते नहीं कि हमारी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो छोटी छोटी चीजों पे डिपेंड। आपको 15 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 4 पिलर तो नीचे, 4 पिलर तो नीचे लगाने पड़ेंगे। आप उन पिलर से ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस 5 फ्लोर या 15 फ्लोर की बिल्डिंग ध्यान दे रहे हो, तो गिरना ही गिरना है। तो वाटर इंटेक अच्छा करो, सनलाइट, क्या बोलूं यार, इसमें इतना गंदा हुआ पड़ा है बाहर का इन्वायरमेंट, स्पेशली दिल्ली एनसीआर। मुझे और पता इतना आइडिया है नहीं कि, तो उसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मतलब देख लो, मॉर्निंग में अपना 6 बजे उठ जाओ, तभी ले लो, फिर शाम को ले लो, बट आफ्टर 7 8 AM टू 4 to 5, चांस ही नहीं है यार, चांस ही नहीं है। आप सनलाइट ले लो। एक्सरसाइज, लाइक यस, मेरा थोड़ा बेली फैट पड़ा हुआ है, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं कुछ कुछ मतलब कुछ ना कुछ करूँ पर डे।
अब बेली फैट, जिसको आइडिया है मैं बता दूं कि बेली फैट को हटाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो एक बार आ गया तो। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम एक्सरसाइज कंज्यूमिंग है। ठीक है। सो दिस आर द अंदर व्हाट यू ईट में आएगा। आप सनलाइट भी खा रहे हो, देखा जाए टेक्निकली तो आप सनलाइट खा ही तो रहे हो, आप पानी खा ही तो मतलब वही हुआ। थिंकिंग, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट है। बेस्ड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स एंड आल्सो दिस वन, लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस लास्ट वन, सराउंडिंग एंड हैबिट। आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आज के समय में आपकी सराउंडिंग दो बन चुकी है। एक जो आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में है, एंड द सेकंड वन इज कि आप सोशल मीडिया पे जो सराउंडिंग है, आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप किन को फॉलो कर रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप किन के साथ रह रहे हो, उनसे आप क्या बातें कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज डेज में हमें हमेशा अपने आप को स्टार्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रहना चाहिए, लाइक कि जिससे आप अपने लिए सबसे बेस्ट सराउंडिंग ढूंढ सको। तो सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, आज समय में हम ऑनलाइन भी बहुत रह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ चीजें हम अब ऑनलाइन ही करना शुरू कर दी हैं, तो ऑनलाइन पे भी हमें ये चीज हमें हम किसे कंज्यूम कर रहे हैं, किसको हम फॉलो कर रहे हैं। एंड द हैबिट ऑफ कोर्स। ठीक है। सी, आपको कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। और वो मोटिवेशन वो नहीं जो आप बाहरी दुनिया से लेते हो। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑल। वो मोटिवेशन जो आपको किसी एक्चुअल काम करने के बाद मिलता है। तो हैबिट्स में, जैसे कि टाइम से उठना, प्रॉपर नहाना, जो हर दिन नहाना, जो मैं करता हूँ। ठीक है। अ, और बिस्तर में बेडशीट लगा रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो जो ये सब हैबिट्स हैं, प्रॉपर डाइट लेना, सुबह शाम टाइम से सबको खाना खाने का, ये सब जो हैबिट्स हैं, ये ओके। ऑन अ जनरल नोट, ये बहुत मैटर करती हैं। अगर ये मेरा एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ चीज दिक्कत हो रही पढ़ने में, लाइक पढ़ने में हो गया, या फिर कोई एक बड़ी हैबिट बनाने में, या फिर कुछ बड़ा करने में, आप अपने लाइफ की जो छोटी चीजें जो आपको पढ़े करना है, करना है, ड्रेसिंग करना है, नहाना को पढ़े है, खाना को पढ़े, आप इनको बेहतर करें। इससे होता क्या है कि कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ऑन अ सब कॉन्शियस लेवल। मोड़ा होता है यार, ठीक है, इस बड़े चीजों में मैं खराब था, मैं आज भी खराब हूँ, पर मैं इन छोटी चीजों में भी खराब था कल तक। ठीक है, पर आज मैंने इसको ठीक किया। हाँ, ये ऐसा आप सोचोगे नहीं, बट इसका कॉन्शियस लेवल पे होगा। इसको आप फील कर पाओगे, बट इसको आप सोच नहीं पाओगे। कुछ ऐसा होता है कि मैं इस बड़े चीजों में खराब था, मैं आज ही खराब हूँ। मैं कल इस बड़े चीज में खराब था, मैं इसमें आज भी खराब हूँ, पर मैं कल इन छोटी छोटी चीजों में भी खराब था, पर मैं आज खराब नहीं हूँ। जैसे मैंने इसको इम्प्रूव किया है, मैं इसको भी इम्प्रूव कर लूंगा। ये लाइक को फील आता है, लाइक उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। ये सब कुछ चीजें ऐसी आप, ऐसी चीजें आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप बस महसूस कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्प करता है। अब किचन में गए, बर्तन धुल लो, झाड़ू लगा दो, पोछा मार लो, अपना डेस्क ठीक कर लो, पर्दा साफ कर लो, धुल के सुखवा के, जो करना है सब कर दो। जो छोटी चीजें होती है, वो बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट हमेशा स्मॉल करो। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लेसन दो है: ऑलवेज बीइंग इन प्रेजेंट एंड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल थिंग। ये लाइक मेरा ये लाइफ लेसन है, बेस्ड ऑन ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस। तो ये एक दो तीन चार पांच मिनट पॉइंट्स होंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स, थिंकिंग बेस्ड ऑन अबो ऑल पॉइंट्स, व्हाट यू आर थिंकिंग एंड परसुइंग। हम कोई भी जब पॉजिटिव थिंक या फिर निगेटिव थिंक कंज्यूम करते हैं, अ, तो हम एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं करते। ये ब्रेन का
ये थिंकिंग प्रोसेस है कि पहले उसे हम कंज्यूम करेंगे बहुत बार, सेम टाइप का चीज बहुत जगहों से कंज्यूम करेंगे, देन उस पे हम एक थिंकिंग करेंगे, हमारी अपनी थिंकिंग चलेगी उसके ऊपर है कि ये कितना सही है कितना गलत है, जो नेचुरल है, जो बेहतर रही है उसको टाइम हमें बेहतर करना पड़ता है। ठीक है, अपने रेशनल एंड द क्रिटिकल थिंकिंग से। एंड जब आप वो थिंकिंग करते हो, देन उसको आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के परस्यू करते हो। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब के, अगर हम इस सबको पॉजिटिवली फॉलो कर रहे हैं, हम अब ये चीज जो हो गया सो हो गया, ये बस मैंने एक पॉइंट लिखा जो लिखा था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में, ये तो जो है वो है, अभी हो चुका है। आप उससे बेहतर कर सकते हो पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते पूरी तरह से। ठीक है, जो आपके थॉट्स हो गए, जो आपके व्हाट यू आर सीइंग एंड फीलिंग हो गया, आप खा क्या रहे हो, कंज्यूम क्या कर रहे हो, किस सराउंडिंग हैबिट क्या होगी, बेस्ड ऑन दैट आप जो कंज्यूम करते हो उस पर रीथिंक करते हो, थिंक करते हो, एंड देन उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के परस्यू करते हो। ठीक है, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस वीडियो को मैं, ये पार्ट वन है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीजें मैटर करती हैं फॉर अ ब्रेन, बॉडी पे भी मैं जब मतलब मैं फिट हो जाऊंगा, अपना बेली फिर सब कम कर लूंगा, इतना भी नहीं है, लाइक इतना भी नहीं है, ठीक है, हल्का सा ये नीचे है जो है। सो वंस आई वर्क ऑन माई फीस पर प्रॉपरली, लाइक मुझे 2 3 मिनट चाहिए होंगे, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट ये मेंटल, लाइक एक दिमाग की थिंकिंग के पीछे कौन कौन से पॉइंट्स मैटर करते हैं, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च विच आई डिड इन लास्ट 1 आवर, ये पॉइंट्स है। सेकंड पार्ट में अब मुझे क्या करना है ना कि अभी मैं बहुत वो नहीं, कुछ नहीं हूं, मैं तो जीरो हूँ। मुझे, मैं जीरो पे था और मुझे एटलीस्ट 90 पहुंचना है, टिल लाइक बाय लाइक मरने से पहले। और ये करने के बाद, ठीक है, तो सर जो मैंने सोचा उसको लिख दिया। लिखना बहुत प्यारी चीज है, आप लिखो। सो मैं अभी जीरो से 0.1 पे गया। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, पर जीरो से तो बेहतर 0.1 होता है। सो अब 0.2 पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि वो मैं बताऊंगा। मैं सोचा नहीं है अभी, सोचा हूँ, बट मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स कि मैं उसको अच्छे से नहीं सोचा हूँ। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बाय द वे। इसके बाद ही मैं सेकंड वीडियो आज ही करूंगा रिकॉर्ड।